Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Chapter 17th is going on of offenses against the property, and today we are going to cover topic that is criminal misappropriation of property. Right बच्चे? Criminal misappropriation of property. In it we have two sections, that is section 403 and 404. Right बच्चे? They talk about dishonest misappropriation of property. Right? So here let's start our topic. बच्चे, you already know misappropriation. Misappropriation means what? Like you're converting the property. Converting the property means keeping it with yourself. राइट अच्छे से समझना बच्चे. इट्स लाइक प्रॉपर्टी है कोई भी थिंग देयर इज एंड यू आर यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्पस. हियर actus reus is misappropriating, like for your own use, and converting. So मेन चीज़ हेयर जिस चीज़ की बात हो रही है बच्चे, दैट इज कन्वर्टिंग. ओके, एंड मेंस रिया क्या होना चाहिए आपके यहाँ पर? डिसऑनेस्टली. Right, you should have in your mind a dishonest intention. Okay, misappropriates means bache to keep it apart from the other person use, and since it is like you are keeping it away from the other person means you are somewhere criminally misappropriating it. Converting means the moment the person starts using it for himself, it means you are converting that property. So आपने किसी से कोई चीज़ ली है, कोई भी थिंग ली है बच्चे यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी, अगर आप उसकी परमिशन से उसको यूज़ कर रहे हैं मीन्स यू हैव कन्वर्टेड दैट प्रॉपर्टी टू योर ओन यूज़. बट इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इट डिसऑनेस्टली, right, for your own gain or for other person loss, then you are using it criminally misappropriating the property. Okay, समझ में आया बच्चे? टू मिस अप्रोप्रिएट मीन्स टू सेट समथिंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन फ्यूचर. राइट, टू कन्वर्ट मीन्स टू पुट द ऑब्जेक्ट टू द नेचुरल यूज, बट इन बोथ द केसेस इट शुड हैव डन फॉर द ओन यूज ऑफ द एक्यूज्ड. ऑलराइट, आप अक्यूज जो है अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है. द वर्ड फॉर हिज ओन यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द पर्सन डजंट यूज इट ऑन हिज ओन, on his own use, right, अपने आप के यूज़ के लिए अगर उसको यूज़ नहीं कर रहा है and gives it to the some third person, then he would be liable at the most for abatement of misappropriation. right बच्चे, यहाँ पर वो abatement के लिए यूज़ liable होगा. And if the third person to whom the property is given, he knows whom the property actually belongs, and still if he is using it, then he would be liable for misappropriation. Okay, समझ में आया बच्चे? बट एक चीज़ याद रखना, इफ़ ए हैज़ टेकन द प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन एंड ही गिव दैट प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, देन हियर डॉटर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द थर्ड पर्सन. राइट, तो यहाँ पर जो ए होगा वो लाइबल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए होगा. डॉटर विल बी कवर्ड अंडर हिज ओन यूज ओनली. Okay, so misappropriation is not necessary that how the person got the property. Right, if A committed theft, इसने theft किया है and of any property and uses it for his own use, then A would be liable for theft as well as misappropriation. समझ में आया बच्चे? अगर आप चीज़ को चुरा के खुद के यूज़ के लिए स्टार्ट कर देते हो, then you are liable under section 378 respect with section this 403. Right, but if any person like A ही finds that property, अगर सिर्फ उसको कहीं मिलती है पड़ी हुई and he start using it for his own use, then he would be liable only for misappropriation, not for theft. वो चुरा के थोड़ा लाया है, उसको तो ऐसे मिली है. तो आपको समझ में आया बच्चे what I am talking about? If the person has given the thing to the third person for use, then it will be the case, it will not be the case of criminal misappropriation. याद रखना बच्चे, मैंने आपको ये एग्जांपल देते हुए, डॉटर चलो उसने दिया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगी. बट अगर किसी से प्रॉपर्टी लेकर मैंने
वो किसी थर्ड पर्सन को दे दी, तो यहाँ मैंने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया है, राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पर्सन फाउंड यूज्ड इट बाय हिमसेल्फ ओनली. ऑल राइट, समझ में आया बच्चे. नाउ for criminal misappropriation, it is not essential that the property should have been acquired by some wrongful means. ये ज़रूरी नहीं कि आपने थेफ्ट करके या उसको दूसरे से छुपा के वो प्रॉपर्टी ली है. नो, रादर इवन इफ यू हैव एक्वायर्ड बाय सम इनोसेंट मीन्स, राइट, आपने अच्छे काम के लिए उसको लिया है, एंड इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन इफ द एक्टर्स रियस टर्न्स इनटू दिस डिसऑनेस्ट इंटेंशन. अगर आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई तभी भी आप लायबल हो गए. समझ में आया बच्चे. देखिए यही डिफरेंस है मेजर थेफ्ट और दिस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में. क्या डिफरेंस है? जो हमारा बच्चे ये होता है द डिसऑनेस्टी मीन्स मेंस रिया इन द पर्सन माइंड कम्स इनटू द पर्सन माइंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी आने के बाद आपके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई है तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन होगा. बट थेफ्ट में क्या होता है, आप उसी इंटेंशन से चोरी करते हैं जो आपके माइंड में ऑलरेडी डिसऑनेस्टी होती है. समझ में आया बच्चे. थेफ्ट में तो पहले से ही डिसऑनेस्टी होगी. सो थेफ्ट देयर इज़ नो कंसेंट, राइट. आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस. थेफ्ट में जो हमारी डिसऑनेस्टी होती है वो पहले से होती है. क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी आने के बाद आपके माइंड में आती है. थेफ्ट में देयर इज़ नो कंसेंट, राइट. क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन में कंसेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट. ओके. सो मिस अप्रोप्रिएशन फॉर अ टेम्पररी पीरियड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन. अगर आपने थोड़ी देर के लिए उसको यूज़ किया तभी भी वो आपकी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन होगी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे. ए ने अपनी बाइक बी को दी सर्विस करवाने के लिए, भाई इसकी सर्विस कर दे, राइट. बी ने उसकी बाइक कुछ दिन यूज़ की, राइट. मतलब सर्विस करने के बाद अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कहीं ले जाने लग गया, ये करने लग गया. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ही इज़ क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएटिंग दैट बिकॉज ही हैज़ हैविंग अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो दैट्स वाई. वरना तो सर्विस करवाने के बाद तुरंत उसकी बाइक को वापस लौटा देता. समझ में आया. लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है बच्चे, उसने मतलब कुछ दिन बाइक चलाई, अपने काम किए, वट एवर सो, एंड देन ही रिटर्न दैट बाइक टू ए. तो अब ये नहीं माना जाएगा कि मैंने तो जी बाइक दे दी, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं. नो, टाइम पीरियड डजेंट मैटर्स हेयर. अगर आपने थोड़े दिन के लिए भी उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए डिसऑनेस्टली यूज़ किया है, इट विल बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. आई होप आई एम क्लियर बच्चे. यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चे. क्या होता है, एक पर्सन है लाइक ए स्टैंडिंग हेयर और जेब से उसकी पर्स गिर जाता है, राइट. यहाँ पर उसका पर्स गिर गया. सो व्हेन द पर्सन मूव्स द पर्स विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, राइट, अ पर्स विच इमीडिएटली फॉलन, देन इट विल बी अ थेफ्ट. ये थेफ्ट माना जाएगा. उसने तुरंत वहीं से चुरा लिया. एज ये क्या है बच्चे, अभी ए वहीं खड़ा है, उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में अभी पर्स है, तो आपने वो चुराया. बट इफ़ ही मूव्स द पर्स विद गुड इंटेंशन, लेकिन अगर बाई चांस उसने पर्स किसी गुड इंटेंशन से उठाया कि मैं इसको लौटा दूंगा, देन इट्स नॉट द थेफ्ट. बट लेटर इफ़ ही कीप्स इट विद हिमसेल्फ, राइट, एंड स्टार्ट यूजिंग इट्स ओन, देन इट विल बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. ओके. पर्स गिरते ही अगर उसने उठा लिया, दैट इज़ थेफ्ट. बट अगर उसने पर्स गिरा हुआ देखा है, वो ये सोच रहा है कि मैं उस बंदे को वापस से दे दूंगा, दैट विल नॉट बी अ थेफ्ट. बट उसने ये सोचते सोचते सोचा क्या यार मिल तो रहा नहीं, मैं ये अपने पैसे अपने यूज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ, देन इट विल बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. ऑल राइट. So for criminal misappropriation of property, these are the two sections 403 and 404. Give a brief reading बच्चे. They strictly prohibits, IPC यहाँ पर deter करता है that nobody has the right to use somebody else property for their own use without their consent. Okay, you cannot misappropriate their property, and if you do so, you will be criminally liable under section 403 or 404 accordingly. Okay. In next video, we are going to start our next topic. Till then, goodbye. Thank you.